Hello students, today we are going to study about the rate of convergence of the iterative methods we have already studied. So let us define rate of convergence. An iterative method is said to be of order p or has the rate of convergence p if p is the largest positive real number for which there exists a finite constant c which is not equal to 0 such that modulus of epsilon k plus 1 is less than or equal to capital C modulus of epsilon k whole to the power p mod का पावर p. अगर हम ये लिख सकते हैं where epsilon k is equals to xk minus xi is the error in the kth iterate. कहने का मतलब है कि epsilon k plus 1th और epsilon k is the error, जैसे epsilon k is the error in the kth iteration. Similarly epsilon k plus 1 is the k plus 1th iterate पे error आएगा आपके. एंड उसका क्या है, ये एरर का मतलब क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्स के केथ पोजिशन पर एक्स की वैल्यू विद द डिफरेंस विद द रूट ऑफ द फंक्शन, द एक्चुअल रूट ऑफ द फंक्शन. रूट फाइंडिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एरर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरर इज द वैल्यू. अगर केथ पोजीशन पे एरर क्या आ रहा है हमें, तो वो क्या होगी, केथ पोजीशन पे एक्स की वैल्यू विद डिफरेंस ऑफ जाई. जाई इज द एक्चुअल रूट ऑफ द फंक्शन. इन दोनों के डिफरेंस को हम एरर कहते हैं. इफ दिस इज सो देन द कांस्टेंट सी इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट and usually depends on the derivatives of fx at x is equals to xi, where we have taken xi as the exact value of the solution for the function f of x. Now we are going to study the rate of convergence and order of convergence of bisection method. As we all know that in the bisection method a new interval is obtained in each iteration whose length is equal to the half of the length of the interval obtained in the previous iteration. Since we take the midpoint of the intervals as the successive approximation, क्योंकि हमने midpoint लिया होता है हर एक interval का, जो भी next to next आता है आपकी approximation, so the upper bound of the error in any approximation is half of the error in the previous approximation. कहने का मतलब है जितना हम हाफ करते जाते हैं उतना हम क्या करते जाते हैं, अपने रूट के क्लोज जाते जाते हैं. तो अगर हमारा प्रीवियस एरर जो आया है, जो भी आया है, इट विल बी नेक्स्ट जो एरर आएगा आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 द इंटरवल्स, देन द एरर विल ऑल्सो बी द हाफ ऑफ द एरर we attained in the previous iteration. And mathematically we can see it here by modulus of epsilon k plus 1 is less than equal to 1 by 2 modulus of epsilon k. ठीक है, where k lies between starts from 0 1 2 3 and so on. Now as we compare with the equation number 1 here, then we find that c is equals to 1 by 2. Okay, so therefore the order of convergence of bisection method is 1, that is bisection method converges linearly with the rate half. ठीक है, because the power of epsilon k is 1 and c is equals to 1 by 2, therefore we can say that bisection method converges linearly with rate. This is the rate, okay, and order is 1. Therefore in other words we can say that the average rate of decrease in the error in successive approximation is this half. That is, at each step the error decreases by the factor 1 by 2. Now next method is secant method. Here we assume that xi is a simple root of function f of x is equals to 0. The xi
नाउ सब्स्टिट्यूटिंग एक्स के इज इक्वल्स टू जाई प्लस एप्सिलॉन के, जो हमने फंक्शन को डिफाइन किया था, दैट इज द डिफरेंस. एप्सिलॉन के इज द एरर एट द kth पोजीशन and the difference between it is equal to the difference between the xk, the value of x at kth iteration, with the difference with the exact value of the solution. So if we take xk is equals to xi plus epsilon k in this equation, because it is the formula of the secant method where k varies from 1 to 3, we substitute this value here and we obtain this epsilon k plus 1 is equals to the right hand side. We name it as equation 3. Now with the help of Taylor series expansion, we expand this epsilon function of epsilon plus xi, and denominator also expanded with the help of Taylor's theorem. Okay, after expanding this and solving like this, मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है, और नीचे आपके पास ये डिनोमिनेटर, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया और उस कॉमन लेने के बाद इसको इन्वर्स में ले लिया -1 में, और फिर इसको हम एक्सपैंड करेंगे. ऑन एक्सपैंडिंग दिस वी गेट एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 एफ डबल डैश जाई एफ डैश epsilon k minus 1 plus order of epsilon k का square and this one. Now where epsilon k plus 1 is equals to capital C epsilon k minus 1. Okay, then epsilon k, तो हमारे पास जब हमारे पास ये वैल्यू होती है by the definition, तो हम कंपेयर किया C को और C की वैल्यू हमारे पास आ गई this half of f double dash from this equation, and higher powers of epsilon k are negative because epsilon k is a error. Our error is very small. We assume that the error is very small at kth position, and hence the higher degrees will become more smaller. Then the relation of the form equation 4 is called error equation. By using the definition of rate of convergence, we get a relation of the form this one. By the definition, जो हमने इससे पहले ही स्टडी करी थी रेट ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, तो जब हमने इसको रिलेशन में को देखा तो हमारे पास एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन के होल टू द पावर पी की फॉर्म में आ गई, वेयर ए एंड पी आर द कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन. अब अगर एप्सिलॉन के प्लस 1 इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है यहाँ से, तो हमारे पास एप्सिलॉन के की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन के यहाँ पे k प्लस 1 था, यहाँ पे k था, जब यहाँ k आया तो हमारा एक लेसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ k प्लस 1 से एक लेसर था, तो यहाँ पे आ गया k माइनस 1. सिमिलरली अगर k माइनस 1 होगा तो यहाँ पे एक और आपके पास क्या लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ से ये आ जाएगा इस साइड, a की पावर होगी -1, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन k minus 1 equals to एप्सिलॉन a raised to the power -1, और यहाँ पे पावर थी p, उसके बाद हमने यहाँ पे पावर ले ली 1/p बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये और ये फॉर्म हो गया. बाय टेकिंग pth रूट, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन k plus 1 एंड एप्सिलॉन k minus 1 इन इक्वेशन नंबर 4. दिस इक्वेशन नंबर 4 we obtain epsilon k whole to the power p is equals to c a raised to the power -1 plus 1 over p epsilon k 1 plus 1 over p. This is equation number 6. Now comparing the powers of epsilon k on both sides, we get यहाँ पे है पावर p, यहाँ पर है 1 plus 1 over p. Now solving for p we get 1 over 2. यहाँ से जब हमने पावर्स को कंपेयर किया, इक्वल किया, तो यहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ रही है ये वैल्यू, तो p की वैल्यू आ गई दिस वन. नाउ आफ्टर दैट नेग्लेक्टिंग द माइनस साइन वी गेट द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकेंड मेथड p इज इक्वल्स टू, आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म, इसको हमने सॉल्व किया, √5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और माइनस की जो टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास वी गेट 1.618. So therefore the rate of convergence of the secant method is p 1.618 and the value of a is equals to capital C whole to the power p by p plus 1.
Okay, now next we have method Regula-Falsi method. If the function f of x in equation f of x is equals to 0 is convex, if it is convex, that is the convex form, जैसे आपके पास convex concave आपने mirrors पढ़े हैं, shape पढ़ी है, तो वही convex की form में अगर ये है in the interval x0 x1 जहाँ पे आप root find कर रहे हैं, that contains the root, then one of the points x0 or x1 is always fixed and the अदर पॉइंट वेरीज विद के, जो कि आपने ग्राफ में देखा है कि अगर आपके पास नियर टू दी एक्स नॉट रूट है तो उसी के आसपास आपका फॉर्म होता है, वैल्यूज़ आती हैं. अगर x1 के नियर है तो वो आपके पास उसकी नियर ही वैल्यूज़ आती हैं. आप ग्राफ देख सकते हैं जो हमने Regula-Falsi में पढ़ा था. तो वहाँ पे आपके पास क्या है, इफ़ द पॉइंट एक्स नॉट इज़ फिक्स्ड, अगर फिक्स पॉइंट है बाकी वेरी करता है उसके क्लोज जाने के लिए, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट एफ नॉट एंड एक्स के एफ नॉट. केथ पोजिशन पे इटरेशन है जहाँ पे के की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने क्लोज थे अपने रूट के. जो एक्स नॉट था वो कितना क्लोज था अपने रूट के. तो एरर इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 जो हमने पहले पढ़ी है वो बन जाती है ये एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन के माइनस 1 बिकम्स, ये बनेगी एप्सिलॉन के प्लस 1 और एप्सिलॉन नॉट एंड के, क्योंकि आपकी केथ पोजीशन और एक्स नॉट पोजीशन पे हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ क्लोज टू रूट है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, सी की वैल्यू क्या है, हमने पिछले ही वैल्यू में देख लिया था सेकेंड मेथड में कि सी की वैल्यू होती है 1/2 एफ डबल डैश एप्सिलॉन और एफ डैश एप्सिलॉन काई जाई जो आपके पास वैल्यू है. एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट और जो एग्जैक्ट वैल्यू उन दोनों का डिफरेंस. एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स द एरर एट 0th पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो आपने एक्स नॉट लिया है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ के जिसमें कोई के की वैल्यू नहीं आ रही है. देयरफॉर वी कैन राइट एप्सिलॉन के प्लस 1 जो आपकी स्टैंडर्ड रेट ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है सी स्टार के एप्सिलॉन के, फिर सी स्टार की वैल्यू क्या बन जाएगी, सी स्टार की वैल्यू बन जाएगी सी एप्सिलॉन नॉट इज द एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट एंड हेंस Regula-Falsi मेथड हैज लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस बिकॉज यहाँ पे पावर आपके पास 1 आ रही है तो यहाँ लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस हो जाए. नाउ नेक्स्ट है न्यूटन-रैप्सन मेथड. नाउ अगेन टेकिंग द सेम थिंग on substituting xk is equals to xi आपको पता है it is the exact value of the root plus epsilon k is the kth पोजीशन पे जो एरर है इन इक्वेशन xk प्लस 1, क्योंकि ये फॉर्मूला था किसका, न्यूटन-रैप्सन मेथड का, तो xk प्लस 1 इज इक्वल्स टू xk माइनस fk ओवर fk डैश वेयर k इज 0 1 2 एंड सो ऑन. दैट इज xk प्लस 1 इज इक्वल्स टू दिस वन, क्योंकि हमने यहाँ पे केथ पोजीशन पे वैल्यू डाल दी x की. इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ द फंक्शन वैल्यू एट x केथ पोजीशन. तो x केथ पोजीशन पे क्या होता है x के, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली f ऑफ x के, ये भी लिख सकते हैं और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन भी है. तो मतलब ये तीनों चीज़ें एक ही हैं. तो अगर ऐसा है तो अगेन विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ f xi प्लस एप्सिलॉन के एंड f डैश द डेरिवेटिव एट xi प्लस एप्सिलॉन के. इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ये एक्सपैंड कर दी. एंड ऑल्सो वी नो दैट, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि xi अगर हम मेरा एग्जैक्ट रूट है तो इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू xi पर 0 होनी चाहिए बिकॉज 0 इज़ द रूट. ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम एक्सपेंशन लगाते हैं यहाँ पे xi आपको दिख नहीं रहा होगा, वो इसीलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने एक्सपेंशन लगाई और एक्सपेंशन लगाने के बाद xi की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करी है. मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ. तो आपके पास क्या आता है xi k प्लस 1 इज इक्वल टू xi k. ये वैल्यूज़ हमने जब आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है xk प्लस 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी xi प्लस एप्सिलॉन के और यहाँ डाल दी xk की वैल्यू xi प्लस एप्सिलॉन के, यहाँ एप्सिलॉन k प्लस 1 था तो xi यहाँ पर कैंसिल हो गया है तो एप्सिलॉन बचा है. और यहाँ पे जो एक्सपेंशन में f xi आया था वो 0 होती है बिकॉज xi इज़ द रूट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x. अगर वो उसका रूट है तो फंक्शन की वैल्यू उस पर 0 आएगी. तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया. ये जो आपका डिनोमिनेटर है यहाँ से हमने f xi पहले कॉमन ले लिया
कॉमन लेने के बाद उसको हमने न्यूमरेटर में रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो एफ डैश जाई है इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ न्यूमरेटर पे इसको यहाँ पे रख दिया, तो इसकी पावर क्या आ गई -1 जो डिनोमिनेटर में था। तो एप्सिलॉन जाई एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 एफ डबल डैश, ये आपके पास वैल्यू होती है। जो हायर ऑर्डर की टर्म्स है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज एप्सिलॉन के इज़ एन एरर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो उसकी हायर जितनी पावर होती जाएगी वो मोर स्मॉलर होता जाएगा, इसीलिए नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आई वैल्यू, एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल सी एप्सिलॉन के का स्क्वायर, जहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 एफ डबल डैश जाई ओवर एफ डैश जाई, जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन के का स्क्वायर। देयरफॉर द न्यूटन-रैप्सन मेथड हैज सेकेंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बिकॉज यहाँ पे 2 की पावर आ रही है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड। बिफोर फाइंडिंग द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ fixed point iteration method, we must state one theorem which is very important for the case of fixed point iteration method. Let's state this theorem, and the proof is very easy, so I think आप उसको आराम से कर सकते हैं। So let's state this theorem. Let xi be the root of equation f of x is equals to 0. इसका मतलब xi की वैल्यू अगर हम इस पे लिखेंगे तो वो 0 फंक्शन बना देगा, विच इज़ इक्वलेंट टू द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 5i, जो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं बिकॉज हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इटरेशन, जो फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, x इज इक्वल वी रीअरेंज द फंक्शन एंड राइट द फंक्शन f of x is equals to 0 in the form of x is equals to 5i, where phi is any function of x such that its derivative and modulus is less than 1। वो चीज़ है क्या देख लीजिए। एंड कैपिटल आई बी द इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू दैट इज, हम ये मान के चलेंगे कि जैसे हम फंक्शन को चेक करते हैं किस फंक्शन किस वैल्यू पर फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, किस वैल्यू पे फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, फिर हम चेक करते हैं कि इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट आपके पास या राइट टू लेफ़्ट आपके पास जो फंक्शन है अगर वो एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इट मीन्स उसका जो कोई भी वैल्यू है एक्स की वो रूट है उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। तो इसका मतलब हम अगर एक्साई उसका एक रूट है, इसका मतलब लाइज बिटवीन दिस इंटरवल जो भी एक्स आप लेंगे। तो इफ़ मॉडुलस ऑफ फाई डैश एक्स इज लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल, हर सरीक एक्स के लिए जो कि इस इंटरवल जो आपके पास डिफाइंड इंटरवल है, देन द सीक्वेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन x0 x1 x2 xn डिफाइंड बाय दिस कन्वर्जेस टू द रूट xi। अगर ये चीज़ पॉसिबल है किसी भी फंक्शन के लिए जो हमने यहाँ पे अरेंज किया है, तो हम कहेंगे कि वो कन्वर्ज करेगा रूट को, अदरवाइज द कन्वर्जेंस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार अगर हम फंक्शन गलत चूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो सीक्वेंस है इट विल डाइवर्ज और नेवर डाइवर्ज और वेरी लेट डाइवर्ज। ठीक है, तो ये चीज़ हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। नाउ रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं हमारा फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड का क्या रहेगा। नाउ फॉर दिस वी लेट अस टेक xi is the simple root of the function f of x is equals to 0, जो हम हर एक में लेते आए हैं। The general iteration formula for the iterative method हमें पता है क्या है, xk plus 1 is equals to phi of xk where k is 0 1 2 and so on, let it be equation 1। If epsilon k and epsilon k plus 1 are the errors in the approximation, अगर ये errors हम मान के चलते हैं और xk and xk plus 1 पर हमारे ये errors आ रहे हैं, that is the difference with the exact root, that is the difference between the exact root, then epsilon k हम कैसे लिखते हैं, xk minus xi and xi is the exact root and epsilon k plus 1 is equals to xk plus 1 minus xi and we can write xk plus 1 and xk। Substituting these values in formula 1, यहाँ पे हमने substitute कर दी values, we get xi plus epsilon k plus 1 the value of xk plus 1 और xk की वैल्यू रखी xi plus epsilon k। Again by using Taylor series expansion phi xi plus epsilon k को हमने expand कर दिया
और एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हुई जो सिंपल एक्सपेंशन है टेलर सीरीज की। और वही हायर ऑर्डर की टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया एप्सिलॉन के बिकॉज एप्सिलॉन के इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड द kth पोजीशन ऑफ एक्स। तो हमके पास क्या आ रही है, हमारे पास जो लेफ्ट आउट बच रहा है वो है जाई प्लस एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 5 जाई प्लस यहाँ से सिर्फ ये वाली टर्म, ठीक है, ये आपके पास आ गई एप्सिलॉन के 5 डैश दिस वन ओनली एंड दिस वन सेकेंड वन, ठीक है, ये आ गई। बाकी टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इससे ऊपर भी आपकी 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आना था, वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सिंस जाई इज द रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 और इक्वलेंटली x इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है, जाई क्या है, इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन। अगर इसका फंक्शन का रूट है तो इसका मतलब इसका भी रूट है जो हमने अज्यूम किया है, देयरफॉर वी कैन राइट, रूट होने का मतलब है फंक्शन की वैल्यू जाई पे, तो इसका मतलब क्या है, जाई इज इक्वल्स टू 5 जाई। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 दिस वन हम क्या लिख सकते हैं, हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जाई की जगह पे। जाई की जगह पे जब हमने 5 जाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, जैसे कि मैं यहाँ पे शो कर सकती हूँ कि हमारे पास जाई 5 जाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 जाई प्लस एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 जाई प्लस एप्सिलॉन के 5 डैश जाई। तो अब जो सेम है वो तो हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन के 5 डैश जाई। अगेन हमारे पास क्या आ गया, बाय कंपेयरिंग विद द रेट ऑफ कन्वर्जेंस के टाइम पे जो हमने डेफिनेशन डिफाइन करी थी, तो वहाँ से हमने इसको कंपेयर किया उसी डेफिनेशन के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस ऑर्डर एज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन प्रोवाइडेड, ये चीज़ है, तो देयरफॉर द इटरेशन मेथड इज लीनियर। हेंस we have got the values of rate of convergence of each of the methods discussed earlier. So I hope आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। थैंक यू।